Hello my dear students, how are you all? My dear friends and मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, you're all welcome to another online class of ours. Today my dear students, we shall discuss and learn and get really an interesting an introduction as well as the summary and entirely about a very interesting story. Now the story today we're going to learn is The Snake and the Mirror. This is chapter 5 of our NCERT Beehive textbook for grade 9. I repeat once again, it's the NCERT Beehive book for grade 9 and this is chapter 5, The Snake and the Mirror. Now this story has originally been written by Vaikam Muhammad Bashir, who wrote this in Malayalam, okay, because he belongs to Kerala. And it has been translated by V. Abdullah. Now let's look at an introduction about our author. Vaikam Muhammad Bashir, who lived from 1859 to 1927, was an Indian independence activist and writer of Malayalam literature. In the Malayalam literary arena, the legend Vaikam Muhammad Bashir owns a remarkable position. With his profound and simple writing, a touch of satire, sarcasm, and black humor, he is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in India. He was a legend in Kerala. Okay, so he belonged to Kerala. Well, the work he had, the books he wrote, the stories he wrote, they all had an interesting attraction. Okay, whenever we begin reading his stories we get so much attracted. It has simple writing. Okay, जो इनकी writing थी, it was very simple, लेकिन उसमें थोड़ी interesting बातें आएंगी. ठीक है, थोड़ा सा उसमें अजीबो गरीब स्ट्रेंज बातें भी आ जाती हैं बीच बीच में, जिन्हें हम इमेजिन करना लगते हैं कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है. इज दिस रियली पॉसिबल. ठीक है, एंड लेकिन ये अपना ज़्यादातर जो इनका वर्क था, इनकी जो पोएम्स थे एंड इनकी जो स्टोरीज थी, वो मलयालम लैंग्वेज में लिखते थे. सो ऑफन ट्रांसलेट किया जाता था जो वो लैंग्वेजेस नहीं समझते थे. एंड इनको काफ़ी माना भी जाता था इंडिया में. इंडिपेंडेंस से पहले के हैं ये. जस्ट इमेजिन 1859 में इनकी पैदाइश हुई थी. ही वॉज बॉर्न एंड ही पास्ड अवे इन 1927. Okay, he was a legend in Kerala, matlab a well-known person, a well-known figure in Kerala. So now let's quickly look at an introduction to the story. Now the story is a narrative within the narrative. This is a very interesting point to observe. The story is a narrative within the narrative. अब narrative story क्या होती है? जब हमें कोई एक कहानी बताता है, ठीक है, लेकिन हमें जो कहानी बता रहा है ना, वो भी उसे किसी ने बताई थी. Look at it. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. Okay? So homeopathic doctor ने writer को बताया and writer अब हमें बता रहे हैं. इसलिए it is narrative story है, narrative के ही अंदर. Okay? So let's continue. As we see from the title, the snake and the mirror are the two most important things in the story. हमारी जो स्टोरी का टाइटल है स्नेक है, ठीक है, जो सांप है, एंड मिरर मतलब कि आईना, शीशा, ठीक है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन देखते हैं अपना. सो स्टोरी में हमने देखा है कि दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी. एंड ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ओके, दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्नेक. द स्नेक फेल ऑन द डॉक्टर. When the snake saw its reflection in the mirror, it was more interested in that, and the doctor's life was saved. So you see, ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, इनका आमना सामना एक सांप से होता है. वो सांप इनके हाथ पे गिर जाता है, लेकिन इनके बराबर में रखा हुआ जो शीशा होता है ना, आईना, जब सांप अपने आप को उसमें देखता है, वो इतना इंटरेस्टेड हो गया था कि वो डॉक्टर को भूल गया, और इस तरह से डॉक्टर की जान बच जाती है. ओके, सो बेसिकली हम देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे. नाउ बिफोर वी बिगिन द स्टोरी, थिंक अबाउट दिस. सोचें आप थोड़ा. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स?
आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं कभी, तो आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? कि आप अच्छे दिखते हैं, या ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे माथे पे, ओ नो ये क्या हो गया? एंड द लेडीज ऑफ कोर्स, whenever we look at ourselves in the mirror, हम तो देखते रहते हैं बहुत समय तक, isn't it? So anyways, think about it. Next time जब आप आईने में देखेंगे अपने आप को, तो सोचें आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं. Also, have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी डॉग को, कुत्ते को, बिल्ली को या चिड़िया को आईने में देखते हुए अपने आप को आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये जानवर भी अपने आप को देखते हैं? एंड आपको क्या लगता है, अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं? So now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. So अब हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है एंड एक आईना. Okay, so let's begin with the interesting story. So students, now let us look at the story, its explanation and some of the difficult words we come across. It's quite an interesting story. Please do pay attention. So chapter 5, the snake and the mirror. Now let's begin. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Now, अब इसमें क्या होता है, मतलब जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो हमें अपनी कहानी बता रहा था. उसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था एक सांप के साथ. सो वो हमें एक स्टोरी बताने वाले थे जिसमें उन्होंने पहले हमसे 2 सवाल किए. वो थे कि क्या कभी एक सांप ने, ठीक है, हमारी किसी भी पार्ट ऑफ हमारी बॉडी पे अपने आप को लपेटा है. कॉइल जो होता है ना, वर्ड कॉइल्ड, कॉइल होती है जो राउंड होती है, ठीक है, घूम घूम होती है, उसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, सो होती है कॉइल. सो क्या इस तरह से कॉइल हुआ है कभी कोई सांप हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे, वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा. कोबरा पता है, बड़ा वाला सांप जो होता है. सो हम जो सुन रहे थे, हम सब दंग रह गए, हम बिल्कुल चुप रह गए और बहुत ही ध्यान से हम सुन रहे थे डॉक्टर की टेल. TALE, टेल मीन्स लाइक स्टोरी. So now let's continue. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. गर्मियों की रात थी, 10 बजे के करीब. मैंने खाना खाया था रेस्टोरेंट पर और अपने कमरे पे लौटा. I heard a noise from above as I opened the door. अब above क्या होता है, ऊपर, ठीक है. सो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला डॉक्टर ने, सो उन्हें एक आवाज़ आई, नॉइज. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. फेमिलियर मतलब जो हमारी अपनी होती है, अपनापन जिसमें होता है ना, फैमिली. सो फेमिलियर, सो मतलब वो आवाज़ पहले भी सुन चुके हैं. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. आई टुक माई बॉक्स ऑफ matches and lighted the kerosene lamp on the table. So जब वो घर आता है, दरवाज़ा खोलता है, एक आवाज़ आती है ऊपर से. अब वो आवाज़ एक नॉर्मल आवाज़ थी जो वो अक्सर सुनते थे, मतलब कि जैसे जो रैट्स होते हैं ना घर में, चूहे, उन्होंने और डॉक्टर्स ने कमरे को शेयर कर रखा था, मतलब इतने रैट्स थे वहाँ पर. एंड यू नो जब चूहे फिरते हैं घर में, कुछ ना कुछ शोर करते रहते हैं. I took out my box of matches. मैच बॉक्स होता है, that's matches, ठीक है. तो उन्होंने तिल्ली निकाल के माचिस की तिल्ली जलाई, लाइटेड इट. केरोसिन लैम्प, लैम्प होता है ना जिसमें हम मिट्टी तेल डालते हैं, सो दैट्स अ केरोसिन लैम्प, जो टेबल पे रखा था. अब एक डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं. इनका जो रूम था, जो डॉक्टर ने रेंट कर रखा था, उसमें बहुत कम सामान था. एक टेबल थी, एक आईना था, एक केरोसिन लैम्प था, ठीक है, एंड डॉक्टर का सूटकेस था जिसमें उनके 2-4 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं. ये कमरा उन्होंने रेंट पे ले रखा था एंड छोटा सा ही था, बिल्कुल जस्ट अ स्मॉल हाउस. सो लेट्स कंटिन्यू. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर meager.
had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब ये जो घर था इसमें बिजली का कनेक्शन था ही नहीं, ओके, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, छोटा सा कमरा था जो रेंट पे लिया था. एंड आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. मीगर का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है. अभी डॉक्टर की प्रैक्टिस मतलब जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं. सो नया नया स्टार्ट किया था, ज़्यादा कमाई नहीं थी. अर्निंग्स होती हैं कमाई. एंड इनके पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे अपने सूटकेस में. और सूटकेस में और क्या था? शर्ट्स थी एंड कुछ धोतीज. एंड एक अकेला एक सिंगल ब्लैक कोट था. सोलिटरी मीन्स सिंगल. एंड ये कोट ब्लैक वाला इन्होंने इस टाइम पहन रखा था. ओके. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. ठीक है, तो अब थके हुए आते हैं खाना वाना खा के. सो ब्लैक अपना जो ब्लैक कोट होता है उसे उतारते हैं. वाइट शर्ट होती है उनकी, वो भी लटकाते हैं. एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. अब इन्होंने एक बहुत एम्फसिस दी है स्टोरी में, आगे चल के भी आप देखना, अपने वेस्ट पर. वेस्ट होता है बनियान, ठीक है. वो ज़्यादा सफ़ेद नहीं था, ये इन्होंने एम्फसाइज किया है, कलर बताया है. ओके. सो उन्हें टांग दिया. हंग मीन्स टांगना. आई ओपन्ड द 2 विंडोज इन द रूम. 2 विंडोज थी रूम में, उनमें खोला खिड़कियाँ. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall. So कमरे में 2 खिड़कियाँ थी, ठीक है. एंड बाहर वाला कमरा था ये. सो इसमें क्या था कि एक खिड़की जो थी ना, एक कमरे की जो दीवार थी वो सामने खुले सहन को फेस कर रही थी, ठीक है. जो रूफ थी वो टाइल्ड थी, मतलब टाइल्स थे. एंड उन पे सपोर्ट के लिए गेबल्स थे. गेबल्स आप जैसे देखें पिक्चर में दिखा रखा है, ये मकान के जो कोने होते हैं ना, या पाखा होता है, वो होते हैं गेबल्स. ओके. सो देयर वाज नो सीलिंग. there was no ceiling. Okay. There was a regular traffic of rats to and from the beam. अब हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था कि इनके रूम में जो है चूहे बहुत होते थे. सो चूहे आते जाते रहते थे. रेगुलर ट्रैफिक यहाँ पर यूज़ किया है डिस्क्राइब करने के लिए रैट्स के मूवमेंट को. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. So बिस्तर सेट किया अपना, ठीक है, दीवार के पास लगाया. अब लेट गए लेकिन नींद नहीं आई. सो क्या करते हैं, उठ के बाहर जाते हैं वेरांडा में. वेरांडा वो होता है जो हमारे घर के आगे पक्का फर्श होता है, ठीक है, थोड़ा सा निकला हुआ होता है. घर के आगे सहन होता है छोटा सा. सो उसे वेरांडा कहते हैं. सो वहाँ गए थोड़ी हवा खाने, लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. So वापस कमरे में चले जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं. So इनका जो बॉक्स था टेबल के नीचे रखा था, उसमें से इन्होंने खोल के एक बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. So वो टेबल पे रखते हैं अपनी बुक को, ओके, खोलते हैं. और हाँ, उस टेबल पे ना लैंप भी रखा था जो अभी जलाया था इन्होंने, और एक बहुत बड़ा आईना. नाउ मिरर कम्स इनटू द स्टोरी. सो एक बड़ा आईना भी रखा था और एक छोटा सा कंघा जिसे वो अपने बाल ठीक करते हैं. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. अब जब आईना होता है ना तो नेचुरली हम मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए आईने में. सो ये भी देखने लगे. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. So जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं,
इनके अंदर सोच आने लगती है, सोचना शुरू कर देते हैं कि एक वक्त था जब ये मतलब बहुत खूबसूरती को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और ये अपने आप को भी बहुत हैंडसम, ठीक है, बनाए रखते थे। बैचलर थे मतलब अनमैरिड, ठीक है, एंड डॉक्टर हैं। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. So, जब अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं तो अपने आप को और अच्छा मानते हैं। सो कंघा उठाते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, ठीक है, एंड मांग निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं ना पार्टिंग, मतलब मांग निकालना। सो वो सीधी एंड साफ दिखाई देती है। Again I heard that sound from above. अब देखें दोबारा वो आवाज आई। कौन सी? वो वाली जब डोर खोला था इन्होंने, ऊपर से आवाज आई थी जिस आवाज को इन्होंने इग्नोर कर दिया था ना कि अरे चूहे ही तो होंगे, वो आवाज दोबारा आई। Now, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. So दोबारा बहुत करीब से अपने चेहरे को देखते हैं ये आईने में और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लेते हैं। अब से डेली शेव करेंगे, ठीक है, मतलब जो बनाते हैं ना, शेविंग करते हैं जेंट्स, सो आदमी शेव करते हैं, सो शेव करेंगे डेली और एक बारीक मुस्टैच मतलब मूछे रखेंगे एंड उसमें और वो और हैंडसम लगेंगे, क्योंकि थे तो वो बैचलर ही एंड डॉक्टर। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। आईने में देख के मुस्कुराते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. So, ये जब मुस्कुराते हैं फिर ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत प्यारी मुस्कुराहट है। So, एक और बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। अब ये देखिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है अर्थ शेकिन। अर्थ होती है हमारी पृथ्वी, शेकिन होता है हिलाना। So, सोचो उसे डिस्क्राइब किया है डिसीजन को, इतना बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने एक और, कि वो जो मुस्कुराहट है ना अट्रैक्टिव वाली, वो हमेशा रखेंगे ये, ताकि और हैंडसम लगे, क्योंकि बैचलर हैं और ऊपर से डॉक्टर भी हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। दोबारा वो आवाज आई ऊपर से। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। देन another lovely thought struck me. I would marry. वो आवाज आई ऊपर से, तीसरी बार भी डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया। अब वो उठ जाते हैं और पेस्ट मतलब जब हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं आगे पीछे टू एंड फ्रो चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, दैट मीन्स पेसिंग, PACE, पेस। जब हम कुछ सोचते हुए आगे पीछे या कहीं आना जाना कंटिन्यूसली चलते हैं, 2-3 चक्कर लगा लेते हैं। सो ये चल रहे थे और इन्होंने एक और बहुत प्यारा, इन्हें एक सोच आई, बहुत प्यारी सोच आई, मैं शादी करूंगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. अब इन्होंने क्या सोचा, मैं एक फीमेल डॉक्टर से शादी करूंगा, ठीक है, जो औरत ऑलरेडी एक डॉक्टर है उससे शादी करूंगा जिसके पास बहुत पैसे होंगे एंड बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस। She had to be fat for a valid reason. अब एक और भी बात थी इनकी कि जो जिससे शादी करेंगे उसे मोटा होना चाहिए, और उसके लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा रीज़न दिया था, ख़ास रीज़न। If I made silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अगर मुझसे कभी कोई उटपटांग हरकत हो जाए, गलती हो जाए और मैं भागूं तो वो मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए वो मोटी होनी चाहिए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. ये सब सोचते सोचते मैं बैठा वापस अपनी जगह पे बैठता हूँ, चेयर पे, टेबल के आगे, और उस टाइम फिर दोबारा ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आती। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. एकदम से अचानक एक थर्ड, ठीक है, एक बहुत जोर की, जैसे कुछ गिरा है, जैसे कोई रबर ट्यूब होती है ना,
रबड़ की तो वो बहुत जोर से गिरती है, ऐसी एक आवाज आती है कि जैसे वो जमीन पे गिरी है. ओके. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. अब देखो, वो जो आवाजें आ रही थी ऊपर वो तो इन्होंने इग्नोर कर दी. सडनली वो जो बहुत जोर से गिरने की आवाज आई, ठीक है, और इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ होगा. लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि जरा पलट के देख तो लें कि पीछे कहीं की आवाज हुई है. इतना कि ये पलटे, वो सांप नीचे से उठकर इनकी कुर्सी पे चढ़ने लगा, ठीक है, एंड चढ़कर इनके शोल्डर पे आ गया. जब ये पलटे, इन्होंने अपना चेहरा घुमाया और सांप इनके शोल्डर पे बैठा. दोनों काम साथ साथ हुए एंड इनका फेस बिल्कुल सांप के फेस से आमने सामने हो गया. ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे. I did not jump, I did not tremble, I did not cry out. There was no time to do such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. मैं नहीं कूदा, मैं कांपा भी नहीं, मैं चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि ये सब करने का समय ही नहीं था. सांप मेरे शोल्डर पे से जैसे वो चलता है रेंगता हुआ, मेरे जो हाथ होता है, ठीक है, एल्बो से ऊपर, कोहनी से ऊपर, लेफ्ट आर्म के हाथ पर, बाजू पर लिपट गया. कॉइल, ठीक है, एंड अपना हुड मतलब सर के पीछे का जो हिस्सा होता है वो आगे लाया और जब मेरी तरफ देखा, ठीक है, तो उसके और मेरे फेस में 3 से 4 इंच का डिस्टेंस था सिर्फ. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ अपनी सांस रोक रखी थी, मैं पत्थर का बन चुका था. लेकिन जो मेरा माइंड था, जहन, वो बहुत एक्टिव था. दरवाज़ा खुला हुआ था पर अंधेरा था. पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था. लेकिन उस लैंप जला रखा था, उसकी लाइट में अगर देखता कोई तो उसको मैं दिखता एक पत्थर, ठीक है, एक पत्थर की इमेज लग रहा था मैं, लेकिन जिसके अंदर फ्लैश था, मतलब मीट. ओके, लेकिन मैं पत्थर का बन चुका था. अब आप इमेजिन करें, ऑब्वियसली अगर आपके चेहरे और एक सांप के मुंह के डिस्टेंस जो 3 से 4 इंच का होगा तो आप भी पत्थर के बन जाओगे. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my hurt the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. अब देखें, उस टाइम ये एक नेचुरल बात होती है, जब भी हम मुसीबत में होते हैं हमें उस टाइम ऊपर वाला बहुत याद आता है कि हाँ, ऊपर वाला है. यही सिचुएशन थी डॉक्टर की. उस टाइम उन्हें वाकई में पता चला, एहसास हुआ कि गॉड होता है. ओके, और वो इतना डर रहे थे कि वो सोचे थे कि अपने दिल के पास अगर वो वर्ड्स लिख देते, ओ गॉड, काश ऐसा हो सकता था. अब उनके जो बाजू था लेफ्ट, जिस पे वो सांप लिपटा हुआ था, उसमें दर्द भी होने लगा था. It was as if a thick leathern rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब सोचो, कोबरा है, इतना बड़ा सांप है, एंड वो लिपट रहा है आपके बाजू पर, ठीक है. मुझे लगा जैसे एक रॉड, ठीक है, बहुत मोटा सरिया जैसा होता है ना रॉड, कि वो है. लेकिन नहीं, फिर मुझे एहसास हुआ कि सरिया जो था वो गरम
लोहे का था, जो गर्म पिघलता लोहा है उसका था, जो बहुत पावर से लेकिन धीरे धीरे मेरे बाजू को खत्म करा, मतलब तोड़ रहा था, कुचल रहा था, इतना टाइट होता रहा और मेरे बाजू की सारी पावर खत्म होने लगी थी। ठीक है, ड्रेन का मतलब होता है जब जैसे किसी चीज की एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे बैटरीज होती है ना छोटी छोटी, हम रिमोट्स में डालते हैं तो वो बैटरी का जो चार्ज होता है वो ड्रेन हो जाता है, हमारे फ़ोन की बैटरी का चार्ज ड्रेन हो जाता है। इसी तरह जो जितनी पावर थी ना, स्ट्रेंथ थी बाजू में, वो ड्रेन होने लगी थी। क्या करूं, यही दिमाग में यही आता रहा डॉक्टर के कि मैं क्या कर सकता हूँ। At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked far 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता, ठीक है, तो स्नेक मुझे डस लेता, स्ट्राइक मतलब अपना वार कर देता मुझ पे। मौत जो थी ना, डेथ, मेरे से 4 इंच दूर मतलब थी, घूम रही थी, भटक रही थी। सपोज इट स्ट्रक, अगर सांप मुझे डस लेता है, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मैं क्या दवा लूंगा। यहाँ तो कमरे में दवा भी नहीं थी। मैं एक गरीब, बेवकूफ एंड स्टूपिड डॉक्टर हूँ। ये सोचकर मैंने अपना डेंजर, जो मेरे सर पे मुसीबत थी, वो भूलकर अपने आप पे मुस्कुराने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। जब मैं अपने आप को बुरा कह रहा था, शायद गॉड को ये बात पसंद आ गई। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो मैंने अपनी बुराई की थी, डॉक्टर का कहना है कि जब मैंने अपनी बुराई की, वो बात शायद गॉड को पसंद आ गई, क्योंकि अब आगे का देखें, जो सांप होता है वो अपना जो है सर घुमाता है, ठीक है, वो जो रखा हुआ आईना होता है उसमें देखता है और अपनी परछाई देखता है। चलो आगे देखते हैं। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। अब यहाँ दो बातें कि मैं ये तो नहीं कहता कि ये पहला सांप है जिसने आईने में देखा है, लेकिन ये जरूर पक्की बात है कि सांप आईने में अपने आप को देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपने आप को देख रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? सांप क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था? कोई इंपॉर्टेंट फैसला ले रहा था, या उसे मूछें उगानी थी, या आई शेडो एंड मस्करा एंड मेकअप करना था, या अपने माथे पे बिंदी रखनी थी, ठीक है, या सिंदूर भरना था। जैसे अब आप देखें कि जो चीज़ें डॉक्टर ने सोची थी, वो ये देख रहा था कि क्या सांप भी ये चीज़ें सोच रहा है इन्हें मैं देखकर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। What sex was the snake? Was it a male or a female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. Now, ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या देख रहा था वाकई में, लेकिन वो सांप मेल था या फीमेल ये भी नहीं पता, ठीक है। फिर क्या होता है, जो सांप होता है उसके बाजू पे से हटकर, ठीक है, अनवुंड मतलब जो कॉइल होती है ना, पहले तो वो कॉइल हुआ था बाजू पे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खुलकर आके उसकी लैप पे बैठ गया, ठीक है, आगे उसके पैरों पे बैठ गया। नाउ फ्रॉम देयर इट crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. जब उसके लैप में बैठा, वहां से वो धीरे से टेबल की ओर चला और शीशे के पास जाके बैठ गया, ठीक है, मतलब टेबल के ऊपर शीशे के सामने। फोटो में देखें जो इमेज दे रखी है, एक सांप बैठा है आईने में अपने आप को देख रहा है, और वो क्या सोचा था कि शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन को और करीब से एंजॉय करना चाहता था। I was no mere image in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. अब मैं वो पत्थर नहीं रहा
जिसको आप काट के कोई मूर्ति बना सकते। सडनली मैं एक आदमी बन गया था, फ्लैश एंड ब्लड का, मेरे अंदर खून था, एंड अपनी सांस को पकड़े हुए, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सांस रोक रखी थी हमने, इस तरह से कुर्सी पे से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा। बहुत धीरे से चुपचाप से मतलब बाहर निकला, दरवाजे से बाहर वरांडा में। From there I leapt onto the yard and ran for all I was worth. और वहां से एक लंबी सी छलांग लगाई खुले सहन में, एंड जितनी हिम्मत थी, जितनी तेज हो सकता था, वहां से भागा। फ्यू, ये एक एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जब हमें किसी चीज के बाद बहुत सुकून मिलता है, लाइक सो इसी तरह से फ्यू। Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" अब देखें, डॉक्टर जो थे होम्योपैथिक डॉक्टर, वो हमें कहानी बता रहे थे, isn't it? So ये सब सुनने के बाद हमने भी एक बहुत सुकून भरी सांस ली, ओके? फिर किसी ने, एक दोस्त ने पूछा, डॉक्टर क्या आपकी बीवी बहुत मोटी है? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin breedy person with a gift of a sprinter. डॉक्टर बताते, नहीं, ऊपर वाले ने कुछ और ही चाहा था। मेरी जो जीवन साथी है वो एक निहायत ही पतली दुबली इंसान है, एंड एक बहुत तेज भागने वाली। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? एक और शख्स ने पूछा, डॉक्टर जब आप भागे थे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने कहा, मैं इतना भागा, मैं भागता रहा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंचता हूँ। Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. ठीक है, so जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसने अपने आप के ऊपर बहुत सारा तेल डाला और नहाया। I changed into fresh clothes. और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने। The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. अब वो अपने दोस्त के यहाँ रात को रुकता है और अगले दिन मॉर्निंग 8:30, ठीक है, सुबह के 8:30 बजे अपने दोस्त और 1-2 और लोगों को लेकर अपने रूम पे जाता है ताकि वहाँ से अपना सामान उठा ले। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, बहुत ही कम मिला था, बहुत कम बचा था। क्यों? क्योंकि चोर, thief means चोर, चोर ने उनका काफ़ी सामान ले लिया था। The room had been cleaned out. ठीक है, कमरा साफ कर चुका था चोर। But not really. लेकिन the thief had left behind one thing as a final insult. लेकिन जो चोर था ना, वो बेइज्जती में एक चीज़ तो छोड़ गया था। वो क्या था? मतलब मैंने पूछा, एक दोस्त ने पूछा, वो क्या था? The doctor said, my vest, the dirty one. डॉक्टर कहता है, मेरा बनियान जो गंदा था। The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. डॉक्टर गुस्से में कहता है कि उस चोर में भी इतनी सफाई की सेंस थी। अरे वो रास्कल ले जाता एंड पानी और साबुन और वाटर से, पानी से धुल के यूज कर लेता। Did you see the snake the next day? डॉक्टर, अब हम पूछते हैं कि भाई जब आप गए थे अपने दोस्तों के साथ तो क्या आपने वहाँ सांप देखा था अगले दिन? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. डॉक्टर हंस के बताता है, नहीं, मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। वो एक ऐसा सांप था जो अपनी ही खूबसूरती में खो गया था। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट हो गया था अपनी ही खूबसूरती में, अपने आप को देखते देखते वो बिल्कुल खो गया था आईने में। ओके, so this was the story about the snake and the mirror. So students, we saw the interesting and humorous story, okay, about the snake and the mirror. Now let's also quickly look at a summary about the story. Now, this is a story about a homeopathic doctor during his early career days. The narrator of the story is the doctor himself. In the doctor's story, it was the summer season going on and it was night. The doctor came back to his room after finishing his meal at a restaurant. The room was certainly dark due to lack of electricity.
As such, the doctor made use of a kerosene lamp to lighten up his room. The doctor also took off his coat and shirt. Now, as we saw story में that it's the homeopathic doctor जो narrate कर रहे हैं अपनी story, ठीक है? जो writer है ना हमारे, उनको homeopathic doctor ये story सुनाते हैं. एंड उनकी स्टोरी में, ठीक है, वो अपना रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना खाना खा रहे थे और वो ख़त्म करने के बाद वो अपने घर पहुँचे. एंड उनका जो घर था, वो उनका कमरा था, उन्होंने रेंट पे ले रखा था. एंड वहाँ बिजली भी कनेक्शन नहीं था. एक केरोसिन लैम्प था, ठीक है, केरोसिन इज मिट्टी का तेल. सो उस लैम्प को वो जलाते हैं एक मैच बॉक्स से. एंड उसके बाद उनके पास एक सोलिटरी कोट होता है, ब्लैक कोट, ठीक है, मतलब एक ही होता है. सो वो अपना ब्लैक कोट, अपनी वाइट शर्ट एंड अपना वो नॉट सो वाइट वेस्ट उतार कर टांग देते हैं, ठीक है. अब हमने देखा था कि डोर खुलने पे उन्हें एक आवाज़ आती है कमरे में, इज़न्ट इट? वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि चूहों की आवाज़ होगी. अब उनके रूम में एक टेबल थी, एक चेयर थी, एक बड़ा सा आईना था, ठीक है, एंड ए लैम्प जो टेबल पे रखा हुआ था. अब देखें, बहुत गर्मी थी, ठीक है, समर का मौसम था, रात के 8:30 बज रहे थे. डॉक्टर को नींद नहीं आ रही थी. सो वो शीशे में, आईने में अपने आप को देखने लगे और अपने आप की तारीफ करने लगे. जब ये सब कर रहे थे, ठीक है, सो सडनली उन्होंने शादी का भी सोचा कि उनकी बीवी अमीर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ठीक है. इस सब के दौरान भी उन्हें आवाज़ आई थी ऊपर से जो उन्होंने इग्नोर कर दी थी. अब देखें, फाइनली उस आवाज़ के बाद एक बहुत ज़ोर सी आवाज़ हुई थी कुछ गिरने की ज़मीन पर. लेकिन डॉक्टर ने इतना स्लो रिएक्शन दिया, मतलब इतना टाइम लगाया देखने में, कि जिस वक्त वो पलटे, जिस समय वो पलटे देखने के लिए कि कह की आवाज़ थी, उस समय से पहले या उसी टाइम बिल्कुल जो सांप गिरा था ऊपर से, वो उनकी चेयर पे चढ़कर उनके कंधे पे आ बैठा था. और उसके बाद वो स्लीधर, मतलब जैसे वो रेंगता हुआ उनके बाजू पे लिपट चुका था. अब उनके बाजू में इतना दर्द हो चुका था क्योंकि वो इतना टाइट था और उनका चेहरा और जो सांप का मुंह था उसमें मुश्किल से 4 से 5 इंच का डिस्टेंस था. वो बिल्कुल पत्थर बन गए थे, इतना डर गए थे, इज़न्ट इट? और खैर, ये जब सोच रहे थे उस वक्त उन्हें गॉड याद आता है कि वाकई में गॉड है. लेकिन सडनली जो सांप होता है वो टर्न करता है अपना हेड एंड उसे वो आईना दिखता है और वो धीरे धीरे उनके हाथ पे से उतर कर उनके लैप्स में बैठता है. उसके बाद वो टेबल पे चढ़ के बैठ के अपने आप को उस आईने में एडमायर करता है. और उस दौरान डॉक्टर बहुत चुपचाप उठकर दरवाजे से बाहर जाके अपनी खुले सैन में छलांग लगाकर इतनी तेज़ी से भाग के अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है. सो वी सॉ द स्टोरी, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़. ओके, ये इसकी छोटी सी समरी है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द मोरल ऑफ द स्टोरी. अब इसमें क्या है? कंक्लूजन ऑफ द स्नेक एंड द मिरर, द मोरल, मतलब हम इसे क्या सीखते हैं. सो द स्नेक एंड द मिरर समरी टीचेस अस दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स and whatever one has is a blessing from God. हमें अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए. जो भी है हमें खुदा ने बख्शा है, हमें खुदा ने दिया है, भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है. अब हम ये इसको मोरल क्यों कहते हैं? अब देखें, जो डॉक्टर है वो अपनी तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे थे. मैं इतना अच्छा दिखने में हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ. उन्होंने 2-3 बार इस बात को दोहराया, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर, आई एम अ डॉक्टर. सो हमें जो भगवान या ऊपर वाला खुदा, ठीक है, अल्लाह जो हमें देता है, हमें उसमें खुश होना चाहिए. हमें उसमें गुरूर नहीं दिखाना चाहिए किसी भी बात पर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं. जैसे कि अब हुआ, सांप आ गया, उनके बाजू पे एक सांप बैठ गया. वो डर में बिल्कुल पत्थर बन गए थे. सब भूल गए थे जो उन्होंने फैसले लिए थे कि अब से मैं स्माइल करूँगा, अब से मैं हैंडसम दिखूँगा, अब से मैं शादी करूँगा जल्दी ही. सब भूल गए थे, ठीक है. ये याद आया कि गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड है, एंड डर चुके थे, ठीक है. सो नेवर बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बी हु यू आर. किसी को देखकर आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. नो, ये सब की ज़रूरत नहीं होती. ओके.
So, well, basically, the snake and the mirror. This is the ending of the story. But, my dear students, my kids, my dear friends, just get these two kind words. Stay home, stay safe. This is the biggest advice at the moment of this pandemic that is madly spreading around. But see, life is a journey. Travel wisely. Don't rush to decisions. Don't be hesitant for the right way. Be yourself. Do not copy others. Do not interfere in others' issues. Be happy and contented with what you have and who you are. You will live peacefully. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है ये एक यात्रा की तरह है. हमें बहुत ध्यान से समझदारी से इस यात्रा पे चलना है. बहुत जल्दी फैसले लेकर हमें अक्सर पछतावा होता है, लेकिन अगर हमें सही रास्ता मालूम होता है तो उस पर झिझक भी नहीं होनी चाहिए. जो आप हैं आप वही रहें. किसी को कॉपी मत करें. किसी की लाइफ में, किसी के काम में, किसी के इश्यूज में इंटरफेयर ना करें, मतलब बीच में ना पड़ें. लिव इट. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने आप में खुश रहें. जो आपके पास है आप उसमें खुश रहें. जो आप हैं, ठीक है, आप उसमें खुश रहें. तभी आपका जीवन सुकून से गुजरेगा. अगर आप इसी में लगे रहें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे ये करना पड़ेगा, अगर आप औरों की सोचते रहोगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे. आप खो दोगे अपनी पर्सनैलिटी को. सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ये लाइंस मैंने सिर्फ इसलिए दी हैं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है आजकल हम अपने से ज़्यादा औरों की बातों में उलझे रहते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है. सो जस्ट बी योर सेल्फ, बी हैप्पी विद योर सेल्फ. ओके, don't be proud of yourself, but just be happy. And once again, stay home, stay safe. Thank you for watching.